Hello everyone, I welcome you all to Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी डेली न्यूज़ एनालिसिस जो होने वाली है फ्रॉम द हिंदू. इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का आपके इकोनॉमिक सर्वे जो रिसेंट में रिलीज हुआ है. सो देयर आर लॉट ऑफ डेटा एंड लॉट ऑफ पॉइंट्स दैट नीड टू बी स्टडी, सो वी आर गोना डिस्कस दैट. Then we'll cover your current affair portion and lastly your vocab का part. And all of this will be done in just under 10 minutes. So make sure करना कि आप सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को. एंड अगर आप ये सेशन देख रहे हो एंड आपको अच्छा लगता है ये सेशन, मेक श्योर करना कि आप लाइक कर देना इस सेशन को. 1 like might not mean a lot to you guys, but it'll mean a lot to me and it'll give me a motivation that whatever we are doing with these series, we get a motivation to continue these series. So make sure करना कि आप एक लाइक ज़रूर ड्रॉप करके जाओ on these videos, okay? And one more thing I would like to say here. See, we are trying to convey the entire information in both languages, English as well as Hindi. Okay, so आप try करना. If I am discussing something in Hindi, I'll wait and discuss it again in English. We are trying to make this session very inclusive so that दोनों languages में आपको easily समझ आ जाए. Okay, so I am trying that. I hope कि आप लोगों तक वो information पहुँचे और जिस way में I am trying to convey, you get that. Okay, with that being said, let's start today's session. आज की पहली न्यूज़ है about the economic survey. अब रिसेंट में आपका इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हुआ है. अब इस सर्वे के बारे में देखो, जो आपकी क्रिटिक्स बोल रहे हैं, दे आर सेइंग दैट इट्स अ चेरी पिक्ड व्यू. चेरी पिक्ड व्यू मीन्स बहुत ज़्यादा आपको शुगर कोटेड व्यू निकाली है इन्होंने अबाउट आर entire economy. So it's a very sugar coated view of our entire economy. This is what the critics are saying. Up what this particular survey says, we're going to be discussing each and every point. I'll give you a gist here. Okay, so in this particular survey, what they have said that Indian economy is doing very good. Okay, they have said that after COVID, we have seen that our entire economy has recovered. काफ़ी अच्छी सी जब हमारा कोविड ख़त्म हुआ है उसके बाद में आपकी इकोनॉमी अच्छी से ग्रो करी है, वापस से रिकवर कर चुकी है. जो हमारा ग्रोथ रेट है दैट इज़ अराउंड 6.5% to 7%. सो द ग्रोथ रेट इज़ ऑल्सो गुड एंड हम उसे मेंटेन करके चल रहे हैं. सो वी आर डूइंग वेरी गुड. दिस इज़ वॉट द सर्वे इज से. सी द प्रॉब्लम इज़ नॉट दैट आर इकोनॉमी इज़ नॉट डूइंग गुड. फाइन, आई एग्री दैट हमारी इकोनॉमी अच्छा कर रही है, बट देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट नीड टू बी चेंज्ड. ओके, एंड जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे अपनी प्रॉब्लम्स को, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं पर्टिकुलर इकोनॉमी में, जब तक आप उन्हें एनालाइज नहीं करोगे, आइडेंटिफाई नहीं करोगे, देन यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड. आप सोल्यूशन नहीं लेके आ सकते हो जब तक आप प्रॉब्लम्स नहीं फाइंड करोगे. ओके, सो वी नीड अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑन दीज थिंग्स. वी नीड टू एक्चुअली ऑब्जर्व द पॉइंट्स where we see that Indian economy here we have problems and we need to find a solution here. So the government needs to work the same way. Okay, so here what they have said in this particular survey, they have given a very sugar coated view. They have said ki economy is doing very good and we have maintained this rate. There are little points where we need to grow and there are problem related to unemployment, inequality, but they have said that the problems like unemployability and your inequality, both these problems can be easily addressed and we can actually bring the change onto it. So what we have not done for this many years, we're going to change just like that in the next 10 years. They're saying this. ये कहते हैं कि जो आपके अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी, जो हमारी बेरोजगारी है और जो आपकी इनइक्वालिटी देखी गई है इन द इकोनॉमी, इन द इनकम लेवल, वो आपकी वो थोड़ी प्रॉब्लम्स है, बट वो आपकी बहुत जल्दी मैनेजेबल है और बहुत जल्दी चेंज कर दी जाएगी. ओके, सो ये बात कहते हैं. अब यहाँ पर हम डेटा देखेंगे व्हाट दे हैव शोन. देखो इन्होंने सीधे बोला है यहाँ पर कि जो 10% है हमारी पॉपुलेशन की, 10% ऑफ आवर पॉपुलेशन एक्चुअली ओन्स मोर देन 60% ऑफ आवर इकोनॉमी. सो उनके पास जो हमारी 10% ऑफ पॉपुलेशन है, जितनी 10% है, दैट एक्चुअली ओन 60% ऑफ द इकोनॉमी. तो उनके पास इतना ज़्यादा है. एंड जो बची हुई आपकी बॉटम पे जो 50% आ जाती है पॉपुलेशन, वो आपकी हार्डली 10% है. तो उनकी जो इकोनॉमी है वो और मतलब दैट इज़ वेरी लेस, दैट इज़ अराउंड 10%. सो दिस जो आप गैप देख रहे हो यहाँ पे, दैट इज़ वेरी बिग. दिस गैप इज़ वेरी बिग एंड दिस गैप नीड्स टू बी एड्रेस्ड. दिस गैप नीड्स टू बी एड्रेस एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपकी इनइक्वालिटी है जो इतनी ज़्यादा लेवल है. जस्ट इमेजिन इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, हम सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हैं एट प्रेजेंट, और उसमें से सिर्फ जो 10% पोर्शन है उसके पास 60% है.
ऑफ द इंटायर इकोनॉमी, एंड जो बचा हुआ आपका बॉटम पे 50% है वो हार्डली लाई करता है, ठीक है, वो हार्डली लाई करता है, उसके हाथ में कुछ है नहीं ज़्यादा, ठीक है। तो गवर्नमेंट को नीड है कि वो उसमें चेंजेस लाए। नेक्स्ट थिंग जो उन्होंने आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की बात करी है, सो व्हाट दे हैव सेड दैट द इंडियन इकोनॉमी नीड्स टू जनरेट एन एवरेज ऑफ नियरली 78.5 lakh jobs annually until 2030 in the non-farm sectors to cater to the rising workforce. कितनी जॉब्स की बात करी जा रही है? 78.5 lakhs. दिस इज अ वेरी बिग नंबर इफ यू थिंक 80 lakhs के अराउंड जॉब आप इतने आराम से नहीं दे सकते हो। एंड दे सेड कि अगर आप इतनी जॉब्स एनुअली प्रोड्यूस करोगे देन आप आराम से ग्रो कर जाओगे। बट हाउ? द क्वेश्चन इज हाउ। दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। हाउ? जो हम इतने टाइम में नहीं रीच कर पाए वो हम जस्ट बाय 2030 हाउ वी गोना सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम? बिकॉज एट प्रेजेंट अगर आप देखोगे तो जो आपका प्राइवेट सेक्टर है, ओके, दैट प्राइवेट सेक्टर जो आपका अच्छे से इन्वेस्ट करता था, दैट वाज इन्वेस्टिंग अ लॉट, उसमें देखा गया अ वेरी बिग ड्रॉप। जो आपका प्राइवेट सेक्टर इंक्रीजिंगली इन्वेस्ट करता था, अब इतना बड़ा ड्रॉप देखा गया था वहाँ पर that they are also investing less. The private sector is also investing very less. And this is one of the reasons why you see a lot of unemployment everywhere. ठीक है, अगर आप बात करोगी कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट इज लॉन्चिंग अ लॉट ऑफ स्कीम्स, बहुत सारी आपकी स्कीम्स आ रही हैं, आपकी बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं, बट प्रॉब्लम इज कि वो स्किल्स प्रोवाइड करते हैं आपको, ठीक है, वो स्किल्स देते हैं आपको, दैट इज ट्रू। ओके, इफ यू कंसिडर कि गवर्नमेंट जॉब्स इतनी है और उन्होंने इतने लोगों को, हम इस सर्कल को द अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन भी कंसिडर, ओके, सो दे आर एक्चुअली गिविंग दिस मेनी पीपल स्किल्स, बट व्हेन इट कम्स टू द आउटकम देन जॉब्स तो इतनी ही है। सो कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ डिफरेंस है? सो डिफरेंस इज स्टिल अ लॉट। सो आपने इतने लोगों को स्किल्स दी बट आप जॉब सिर्फ इतने लोगों को ही प्रोवाइड कर पाए, तो अब भी आपके बीच में बहुत ज़्यादा गैप है बिटवीन द पीपल दैट आर अनएम्प्लॉयड। सो ओके, सो दैट गैप इज स्टिल देयर एंड यू कैन नॉट जस्ट इमेजिन। ये बहुत ज़्यादा डिल्यूजनल नंबर है आपका कि आप 80 lakhs जॉब्स एनुअली प्रोवाइड कर पाओ, ओके। सो बहुत ज़्यादा कंसर्निंग इशू है विच दे हैव लेट आउट वेरी ईजिली, सेड इट वेरी ईजिली। नेक्स्ट आएंगे हम, देखो नेक्स्ट उन्होंने बात करी, इंडिया हैज शिफ्टेड टू अ वुमेन लेड डेवलपमेंट, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट राइजिंग। तो इन्होंने इसकी बात करी। देखो यहाँ पर आप फर्स्ट सेंटेंस इफ रीड करोगे, इफ यू रीड द फर्स्ट सेंटेंस है, सो दे हैव सेड कि इंडिया इज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम अ वुमेन्स डेवलपमेंट टू अ वुमेन लेड डेवलपमेंट। सो दिस इज व्हाट दे हैव सेड। दे हैव सेड कि जो हम विमेन को एम्पावर करने के लिए और डेवलप करने के लिए अपनी इकोनॉमी बना रहे थे, अब देखा गया है कि आपकी विमेन ही डेवलपमेंट लेकर आ रही है एंड विमेन आर पार्ट ऑफ द वर्कफोर्स। दिस इज व्हाट दे हैव सेड, ओके। दे हैव सेड कि आपकी जो इन्होंने डेटा बताया है, डेटा को एक बार देखेंगे पहले, फिर हम एनालिसिस करेंगे इसका। देयर हैज बीन अ 218.8% increase in the budgetary allocation for schemes for the welfare and empowerment of women, even as it's acknowledged that women in India face the motherhood penalty with the drop in female labor and participation rate around childbearing years. अब इन्होंने बोला क्या है यहाँ पे? What they have said is, आपने देखा कि जो आपका बजट है, ओके, सो जो आपका बजट है वहाँ पर 200% राइज देखा गया जो आपकी विमेन लेड स्कीम्स में लगाया है आपकी गवर्नमेंट, ओके। सो हम इतनी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी वुमेन को एम्पावर करने के लिए। इसमें आपने बहुत सारी स्कीम्स देखी होंगी। इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, ओके, वेयर दे हैव सेड कि मंथली जो आपकी वुमेन है उन्हें स्टेट गवर्नमेंट आपकी 1500 रुपीज़ प्रोवाइड कर रही है पर मंथ। नाउ इफ यू इमेजिन 1500 रुपीज़ दे आर प्रोवाइडिंग, बट हाउ मच इज 1500 रुपीज़ व्हेन यू गो एंड एक्चुअली यूज दैम, ओके। इन्होंने बहुत सारी स्कीम्स, देखो बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स भी आई है हमारे पास। इफ़ यू थिंक अबाउट द पॉजिटिव्स, देयर आर लॉट ऑफ स्कीम्स जहाँ पर आपके विमेन लैंड जो स्टार्टअप्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा इंकरेज किया जा रहा है, उनको स्किल्स प्रोवाइड की जा रही है। सो दे आर डूइंग दैट इज ट्रू। बट क्या उतने लेवल तक आपको एम्प्लॉयमेंट दिख रहा है, क्या उतने लेवल का पार्टिसिपेशन आपको दिख रहा है या नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कर रहे हो कुछ तो उसका आउटकम क्या है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके। देखो आगे देखोगे आप जो और डेटा है, दैट सेज द सर्वे सेड दैट स्किलिंग स्कीम्स हैव पुट अ डेडिकेटेड एम्फेसिस ऑन कवरिंग द वुमेन and the number of women trained under your Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana has increased from
42.7% in financial year 2016 to 52.3% in financial year 2024. ओके, सो इन्होंने बात करी है यहाँ पर आपकी PMKVY योजना की, जिसके अंदर देखा गया कि जो आप इंक्रीज था विमेन जो पार्टिसिपेट कर रही है 42.7% पहले पार्टिसिपेशन थे और आप देखा गया 52.3% आपकी विमेन थी जो इस स्किल इनहांसिंग प्रोग्राम का पार्ट थी। नेक्स्ट हमने बात करी जन शिक्षा संस्थान स्कीम जो है, इसमें जो आपकी विमेन है कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 82% ऑफ द टोटल बेनिफिशरीज एंड इंस्टीट्यूट लाइक IITs, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन हैज गॉन अप फ्रॉम 9.8% टू 13.3% आपका राइज देखा गया है यहाँ पर। ठीक है, सो ये इन्होंने फैक्ट्स बताए हैं कि इतना इन्होंने राइज देखा है। इन्होंने एक और चीज़ बोली है, इन्होंने बोला है कि जो आपकी अर्बन विमेन है, अर्बन एरिया की जो विमेन है उनका पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स में कम है, एंड इफ़ यू कंपेयर इट विद रूरल एरिया की जो विमेन है उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। ठीक है, इनका है 41.5% है एंड अर्बन एरिया की आपकी 25.4% पार्टिसिपेशन है। सो ये बात इन्होंने बोली है। अब अगर आप इस पर थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे हम, ओके, हम कंसिडर कर रहे हैं अर्बन एरिया की विमेन को, उनका पार्टिसिपेशन कम है और रूरल का आपका पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। सिंपल पॉइंट आई पुट हियर, रूरल इंडिया में से मोस्टली द मेन आर माइग्रेटिंग, वो सब कर रहे हैं माइग्रेट आपके टुवर्ड्स अर्बन एरिया, वो अर्बन एरिया में जाके माइग्रेट कर रहे हैं। तो अब अगर आप कंपेयर करोगे तो रूरल एरिया में जब आप परसेंटेज निकालोगे तो वो हायर आएगी इन कंपैरिजन टू योर अर्बन एरिया। ये आपको सिंपल लॉजिक है कि मेन जब वहाँ पर चले गए हैं तो आपको परसेंटेज वहाँ कम दिखेगी और आपकी रूरल की ज़्यादा दिखेगी बेसिकली। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीजन। प्लस अगर आप इतनी स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हो देन वर्कफोर्स में भी आपकी विमेन उतनी होनी चाहिए। इन्होंने एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया था यहाँ पर कि जो केयर गिविंग आपका सेक्टर है, केयर गिविंग सेक्टर जहाँ पर विमेन पे नहीं होती, व्हाट इज दिस केयर गिविंग सेक्टर? दिस इज द सेक्टर जहाँ पर आप देखते हो जो विमेन आपका हाउस होल्ड का काम कर रही है, ओके, इफ दे आर कुकिंग फूड फॉर यू। सो अगर आप किसी और जने को एम्प्लॉय करोगे टू डू द सेम थिंग, दे चार्ज अ लॉट ऑफ मनी, जिसके लिए उस विमेन को जो आपके घर में आपको खाना बना के दे रहे हो उनको इतना पे नहीं मिलता है, उनको वैल्यू नहीं दी जाती है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। अगर आप इस केयर सेक्टर को फाइनेंस इसको फाइनेंस के सेक्टर में ले आओ और इसमें आप पैसा देना स्टार्ट कर दो, देन आप देखोगे कितना चेंज आएगा। बिकॉज अभी तक जो इंडिया का केयर सेक्टर है वहाँ पर आप उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं देते हो। विमेन अगर वो काम कर रही है तो उन्हें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है जितनी उन्हें मिलनी चाहिए इन दी पर्टिकुलर केयर सेक्टर। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट इज लैगिंग हियर। ओके, बाकी डेटा आपने यहाँ देखा। नेक्स्ट आएंगे हम, यहाँ पर इन्होंने बात की स्लो प्रोग्रेस ऑन रेलवे सेफ्टी। रेलवे सेफ्टी की बात की गई कि रेलवे सेफ्टी में भी आपकी स्लो प्रोग्रेस है। अब रेलवे सेफ्टी में अगर हम स्लो प्रोग्रेस की बात करें, आपको पता है कवच सिस्टम, राइट, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, दिस इज योर कवच सिस्टम, जो अभी तक आपका सिर्फ पूरे इंडिया में 2% ही डिप्लॉय हो पाया है। 2% ही डिप्लॉय हो पाया है आपका कवच सिस्टम। ये एक आपका ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम है, जिसमें अगर देखा जाए कि अगर आई एक्सप्लेन यू लाइक दिस, इफ अ ट्रेन इज कमिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, ए ट्रेन इज कमिंग एंड देयर इज अ ट्रेन बी दैट इज कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड दिस सिस्टम फर्स्टली विल अलर्ट द ड्राइवर्स। ये एक अलर्ट सिग्नल प्रोवाइड करते हैं ड्राइवर्स को, एंड इफ दे सी दैट द ट्रेन इज नॉट स्टॉपिंग, दैट ऑटोमेटिकली ये ब्रेक अप्लाई कर देते हैं और ये ट्रेन को स्टॉप कर देते हैं। सो आपके जो एक्सीडेंट्स है वो नहीं होते हो और एक्सीडेंट्स बच जाते हैं। क्योंकि हमारा जो रेलवे सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है, काफ़ी लोग उसे यूज़ करते हैं, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, प्लस उसमें जो सेफ्टी है उसे इंक्रीज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर ही आपकी एक स्लो प्रोग्रेस देखी गई है, प्रोग्रेस इतनी ज़्यादा लेवल पे नहीं देखी गई है। अब इसका रीज़न देखो, जिस दिन आप यहाँ पर एक बेटर सिस्टम ले आओगे, एक बेटर सिस्टम फॉर इन्वेस्टिगेशन, फॉर मेंटेनेंस, जो आपका सर्वे करेगा, जो इन्वेस्टिगेट करेगा, अगर आप एक डिफरेंट सिस्टम ले आओगे जो ये सर्वेज और इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करेगा, जो आपके चेक्स मेंटेन करके रखेगा, एक प्रॉपर सेफ्टी सिस्टम अगर आप ले आओगे रेलवे में, जो रेलवे का पार्ट नहीं है बट एक डिफरेंट सेफ्टी डिपार्टमेंट अगर आप लेके आते हो, देन आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। जो अभी प्रोग्रेस स्लो है जस्ट बिकॉज अगर रेलवे के एम्प्लॉयज़ ये रेलवे सेफ्टी के सिस्टम में भी काम कर रहे हैं, देन आपकी प्रोग्रेस स्लो है। बट अगर आप एक
डेडिकेटेड सिस्टम लेके आते हो फॉर दिस एंटायर पर्पस, देन यू विल सी दैट देयर विल बी अ चेंज एंड देयर विल बी अ प्रोग्रेस देयर. ओके, नेक्स्ट आएंगे हम. नेक्स्ट उन्होंने बोला है नीड टू स्ट्रेंथन योर इंडियन एयरलाइंस फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल. अब यहाँ पर बात की गई है कि इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए हमें इंडिया की जो कनेक्टिविटी है उसे इंक्रीज करनी है. सो हमें उस पर एम्फेसिस डालना चाहिए और हमें इसे ग्रो करना चाहिए. If I talk here in a very critical way, I'm not criticizing our airline. Our domestic airlines is growing at a very fast rate. We are saying कि हमारी एयरलाइन ग्रो कर रही है. प्रॉब्लम क्या है, अगर आप यहाँ पर इसमें हम देखिए, ठीक है, आप इंटरनेशनली ग्रो करना चाहते हो हमारी एयरलाइंस को, बट नेशनली क्या हम इतना डोमेस्टिकली इतना ग्रो कर पाए हैं? रिसेंट में ही अगर आपको पता होगा, रिसेंट में ही व्हाट हैपेंड, रिसेंट में आपने देखा था द रूफ कोलैप्स्ड ऑफ अ पर्टिकुलर एयरपोर्ट. एयरपोर्ट की रूफ ही कोलैप्स हो गई आपकी, जस्ट बिकॉज देयर वाज लॉट ऑफ रेन. सो हाउ बैड द सिचुएशन इज, हाउ बैड द सिचुएशन इज फॉर आवर इंफ्रास्ट्रक्चर. आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, एंड इट्स नॉट दैट द न्यूज विच जस्ट जस्ट हेयर इन द कंट्री, बट वो और जगह भी आपकी स्प्रेड हुई. सो व्हाट हैपेंस कि आपका नेम कितना स्पॉइल हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ रेन. आप यू कैन नॉट make measures like this, you could not develop an infrastructure that strong enough that अगर आपके पास इतनी rain होती है then the roof should not collapse. Okay, so that is one of the problem. plus आपका traffic इतना रहता है, हम अगर बात करते हैं, plus जो आपकी runways हैं, if you have a lot of rain then runways are also getting flooded. so आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पहले डोमेस्टिकली इम्प्रूव करने की नीड है, देन यू कुड टॉक अबाउट इंटरनेशनल फ्लाइट्स है. सो दैट इज फर्स्टली द कंसर्न. नेक्स्ट थिंग जो इन्होंने यहाँ पे डेटा में बताई, दे सेड कि हमारे 70 एयरपोर्ट्स थे अराउंड 2014 विच हैज ग्रोन अप टू 140 प्लस एयरपोर्ट्स हो गए हैं एट प्रेजेंट. ठीक है, तो 2023 तक वी हैव अ लोड ऑफ एयरपोर्ट्स. सो एयरपोर्ट्स हमारे ग्रो कर रहे हैं, बट वी ऑल्सो नीड एयरलाइंस. ओके, हमें एयरलाइंस भी चाहिए जो सस्टेन कर पाए. ठीक है, जैसे आपने देखा कि जेट एयरवेज के साथ जो हुआ, या फिर आप देखो या गो फर्स्ट के साथ क्या हुआ. सो वी डोंट नीड सिचुएशंस लाइक दिस, सो वी नीड प्रॉपर एयरलाइंस एज वेल. ओके, अभी आपका इंडिगो इज डूइंग गुड, बट what about other airlines? SpiceJet is not doing very good, so that also needs a boost. And we have other airlines, Vistara है आपके पास, ठीक है, बट थोड़ा सा आपको ग्रो करने की नीड है. आपके पास एयरलाइन ज़्यादा होंगी तो आपकी ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स होंगी, बेटर आपकी सर्विसेज आपको मिलेंगी. नेक्स्ट आते हैं हम, लास्टली हमने शिप बिल्डिंग के ऊपर बात करी है. यहाँ पर देखो, आपको इसमें ज़्यादा नहीं ध्यान देना है, आपको यहाँ पर इस पैरा पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है. ओके, सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट. यहाँ पर इन्होंने बात करी अबाउट इंडियाज मैरीटाइम विजन 2030 आउटलाइन के बारे में. Over 150 initiatives to improve ports. So under your India Maritime Vision 2030 outline में 150 आपकी initiatives आई थी to improve your ports, shipping, inland waterways and envisions. ओके, इन्वेस्टमेंट थी इसमें अराउंड 3 to 3.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट इसमें गई थी आपकी. नेक्स्ट आपका द मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 आउटलाइंस 300 इनिशिएटिव्स अक्रॉस योर 11 की एरियाज. सो ये दोनों इनिशिएटिव्स आपको पता होना चाहिए. इट एम्स टू रिड्यूस एवरेज वेसल टर्न आउट टाइम, जो इतना टर्न आउट टाइम होता है वो आपका रिड्यूस हो, प्लस जो आपकी एवरेज शिप्स का जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो बाय योर 2030. सो उस पर फोकस करने की हमें नीड है. नेक्स्ट आएंगे हम, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक अपना रूल लेकर आए हैं. देखो क्या हुआ था, रिसेंट में आपने देखा होगा कि कुछ आपकी जो स्टेट्स हैं, अब जो आपकी स्टेट्स है रिसेंट में, अब देखो आपकी कांवड़ यात्रा स्टार्ट होने वाली है. सो उसमें जो आपकी स्टेट्स हैं, कुछ स्टेट्स लाइक यूपी, उत्तराखंड, उन्होंने क्या बोला कि जो आपके फूड स्टॉल्स होते हैं, जो फूड स्टॉल्स लोग लगाते हैं फॉर दीज कांवड़ यात्रीज, फॉर दैट those food stalls you need to mention on those food stalls, आपको बैनर्स पे मेंशन करना है the name, your father's name, basically your caste. You need to specify all of these things on your food stalls. तो इन्होंने बोला था, ये जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने ये सब बातें बोली थी. अब सुप्रीम कोर्ट के पास पिटिशन आई एंड सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया है इस पर. क्या डिसीजन आया आपका? सो देखो व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज सेड, बेसिकली इन्होंने बोला कि इन सब चीज़ों की कोई नीड नहीं है. ये आप कास्ट की भी कास्ट के बेसिस पे डिस्टिंग्विशन कर रहे हो, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड. सिर्फ जो आपके फूड स्टॉल्स है वहाँ पर
जो आपके कांवड़ यात्रीज हैं उनकी डाइटरी मील्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्लीन आपको खाना बनाना है, ठीक है, सिंपल। एंड यू कुड जस्ट मेंशन कि कौन सा आइटम आपने वहाँ पर रख रखा है ऑन द फूड स्टॉल। यू नीड नॉट टू मेंशन द नेम, द कास्ट, द फादर्स नेम, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। हमें ऐसा डिस्टिंक्शन नहीं चाहिए। दिस इज अगेंस्ट द सेक्युलर वर्ड दैट वी हैव इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशनल इन्होंने अपना वर्डिक्ट निकाला है ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। So Supreme Court has said in this particular situation that you need not to mention anything related to your name, caste. You just need to mention on those particular food stalls that what kind of food you're providing. Is it vegetarian? What kind of food it is, based on what the Kavar Yatris want, and that's it. And if somebody tries to break these rules, then they will be fined. So they have said this particular thing. Very constitutional wording they have given, and this is a very good news. Next we move on to the CA portion. Recently, which historical site in Assam has been nominated as UNESCO's World Heritage Status? Okay, so World Heritage Status के लिए आपका आया है। Important क्या है आपके लिए? Firstly देखो लोकेशन से रिलेटेड आ जाता है। असम में है आपकी। The place is चार दो मैदान। Okay, so this is the particular place. ये आपका असम में situated है, ठीक है। ये आपके अहोम ट्राइब जो असम में फेमस है, अहोम डायनेस्टी बेसिकली उससे रिलेट करता है आपका, ठीक है, उससे रिलेट करती है प्लेस। सो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है आपका इस पर्टिकुलर प्लेस का। आपको नेम ऑफ द प्लेस पता होना चाहिए। आपको ये भी याद रखना है ये असम में लोकेटेड है। नेक्स्ट वील सी द मैप ऑफ असम, यू कुड सी है। ओके, ये आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पे, वहाँ पर जाके अच्छे से देखना। The important things that you need to know from this particular map: firstly, the state capital is Dispur. I guess you all know that. Next thing you need to know कि state borders किसके साथ share करते हैं, ठीक है, national as well as international. So that is important and that you guys must be knowing. Next आएंगे हम on which date is India's National Flag Day commemorating the adoption of the Indian national flag observed. So Indian National Flag Day किस दिन हम celebrate करते हैं? So we celebrated on July 22nd. सो जुलाई 22 को हम सेलिब्रेट करते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन के लिए देखो, ये जो आपका नेशनल फ्लैग डे है हम जुलाई 22 को आपका सेलिब्रेट करते हैं, फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, द फ्लैग प्रपोर्शन, दिस थिंग काउंट्स। ये आपका क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। रेशियो है इसकी 2.3। दिस 2.3 यू गाइज नीड टू रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट आ जाता है। द अशोका चक्रा हैज 24 स्पोक्स हेड, दैट इज वन थिंग यू गाइज नीड टू नो। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, देखो जो आपका चरखा है ये स्पिनिंग व्हील, दिस चरखा हैड been a powerful symbol of self-resilience and resistance during the freedom struggle. This change was suggested by Badruddin Taibji. Okay, so आपका जो चेंज हुआ था, पहले आपका स्पिनिंग व्हील था फ्लैग पे, देन उसे हमने एक आपके चक्र बनाया था। तो वो जो आपका चेंज आया था दैट वाज सजेस्टेड बाय बदरुद्दीन ताइबजी। सो यू नीड टू रिमेंबर दैट। नेक्स्ट आएंगे, which Indian athlete will receive IOC's Olympic order from the IOC at 142 IOC session in Paris? So कौन से आपके वो एथलीट हैं जो रिसीव करेंगे? ये है अभिनव बिंद्रा। So अभिनव बिंद्रा is going to receive this particular prestigious award. Okay, and आपको मुझे बताना है कमेंट्स। दिस इज वन क्वेश्चन फॉर यू। कमेंट्स में आप मुझे बताओगे कि ये सारे जो आप प्लेयर्स देख रहे हो वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेट करते हैं। ओके, सो यू गोना टेल मी अबाउट दिस इन दी कमेंट सेक्शन। बहुत ईजी है, सबके आपको पता ही होंगे। नेक्स्ट आएंगे, विच कंट्री हैज अनवील्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई स्पीड ट्रेन? इट्स अ कार्बन फाइबर मेड ट्रेन। द नेम ऑफ द ट्रेन इज सिट्रोवो 1.0 or Carbon Star Rapid Transit. Okay, you need to know the name of the train as well, and the country which has unveiled it, it's China. So China में आई है आपकी फर्स्ट कार्बन फाइबर की हाई स्पीड ट्रेन। नेक्स्ट आ जाते हैं टॉप 4 वर्ड्स फॉर टुडे पे। फर्स्ट वर्ड इज मिरान, which is a very large number of something. Then we have prod, a push or press somebody, something with your finger or a pointed object. Then we have myopic, not able to clearly see objects from far away. Myopic, when you cannot see things which are far away. Okay. Then we have ambiguous, which is having more than one possible meaning. And lastly, we'll come to the question for the day. I hope you'll answer this in the comment section. काफी easy question है. And अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, make sure you like this session. You share this session with all your friends and do not forget to subscribe to our channel. With that, we'll end the session here and thank you for watching.